ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رضیہ بائی نے اسے بے حجاب کر کے مردوں کی بھری محفل میں کھڑا کیا تھا۔ وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ اب تک سب سے انمول اور حسین ہیرا ہے، جس کی بولی سب سے اونچی ہوئی، پہلی خدمت یہ اس کی کرے گی۔ رضیہ بائی کے کہتے اس کی بولیاں لگنی شروع ہوئی تھی۔ ہر کوئی اس کی قیمت لگا رہا تھا اور وہ اپنی موت کی دعا کر رہی تھی۔ 1 کروڑ۔ جب سے خاموش بیٹھے ابتسام سکندر کی آواز پر سناٹا چھا گیا اور وہ مزید شدت سے رو دی تھی، کیونکہ اسے بیچا جا چکا تھا۔ پھر اسے دلہن کی طرح تیار کیے ابتسام سکندر کے کمرے میں بھیجا گیا، پر جب اس نے نگاہ اٹھا کر ابتسام سکندر کو دیکھا تو پتھر ہو گئی۔ وہ اس کی دوست کا بھائی تھا۔ جب اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس معمر عورت کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ ڈری سہمی سی منال ڈر کر رو رہی تھی۔ وہ عورت جسے سب رضیہ بائی کہہ کر پکارتے تھے، اس نے سیاہ رنگ کی ستاروں سے بھری ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھا۔ وہ اس کوٹھے کی نائکا تھی اور پچھلے 10 سالوں سے وہ اس کوٹھے کی خدمت کر رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے گھر جانا ہے، جانے دے مجھے۔ جب رضیہ بائی کے حکم پر 2 عورتیں اسے وہاں سے لے جانے لگیں تو وہ چیخو پکار کرنے لگی، منہ بند کرو اپنا، تمہاری ماں تمہیں خود یہاں چھوڑ کر گئی ہے، گھر نہیں جا سکتی تم، بہانے مت بناؤ۔ میں جانتی ہوں اپنی خوشی سے آئی ہو تم بھی، پیسوں کے لالچ میں۔ رضیہ بائی اسے گھورتے ہوئے غصے سے بولی تو وہ مزید رونے لگی۔ ماں نہیں ہے وہ میری، مجھے زبردستی یہاں لایا گیا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، بس مجھے جانے دیں۔ وہ ان کے آگے التجا کرنے لگی۔ آس پاس سے گزرتی اس کی ہم عمر لڑکیاں حیرت سے اس نئی آنے والی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ 2 عورتیں زبردستی منال کو وہاں سے لے گئیں۔ اس کے قریب ہی ایک اور لڑکی کھڑی تھی جو منال کو دیکھتے ہوئے ماضی میں کھو گئی تھی۔ جب وہ کئی سال پہلے یہاں آئی تھی تو اسی طرح رو رہی تھی، مدد کے لیے چیخ رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئی اور دولت کی چمک نے اس کے ارد گرد اجالا کر دیا تھا، تو وہ اپنی زندگی کا ہر اندھیرا، تاریکی بھول گئی تھی۔ یہ بھی اسی ماحول میں ایڈجسٹ ہو کر میری طرح ہی ہو جائے گی، اس لڑکی نے سوچا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ منال پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اتنی گھناؤنی اور بھیانک حرکت کر سکتے ہیں۔ اپنی بہن کو یاد کرتے ہوئے وہ رونے لگی کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، اس کے گھر والوں نے اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے یہی سب سوچ رہی تھی جب وہاں رضیہ بائی آ گئی اور اس نے لڑکیوں کو حکم دیا کہ منال کو بھی باقی لڑکیوں کی طرح تیار کیا جائے۔ یہ سنتے ہی منال کے ہوش اڑ گئے۔ نہیں، میں تیار نہیں ہوں گی، مجھے نہیں کرنا یہ سب، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے گھر جانا ہے اپنے۔ وہ انکار کرتے ہوئے بولی تو رضیہ بائی نے کرخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اگر یہ ضد کرے اور بات نہ مانے تو اسے بے ہوشی کا ٹیکا لگانا اور اس کے بے ہوش ہو جانے کے بعد اسے تیار کرنا۔ رضیہ بائی کے حکم پر وہ ششدر رہ گئی۔ اسے خوف آنے لگا۔ ان سب عورتوں سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ایک لڑکی واقعی الماری کے دراز سے موٹی اور لمبی سرنج والا انجیکشن نکال آئی۔ منال کی بولتی بند ہو گئی۔ اب وہ بے آواز رو رہی تھی اور مجبوراً ان لڑکیوں کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ لڑکیوں نے اسے گلابی رنگ کا گہرے گلے والا لباس پہنایا جو کافی چست تھا، جس کے بازو کافی چھوٹے تھے۔ انہوں نے اس کے لمبے بال کھول دیے، آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگایا اور ہونٹوں پر گلابی رنگ کی گہری لپسٹک لگا دی۔ رضیہ بائی، مجھ سے لکھوا لیں، یہ لڑکی بڑا پیسہ لائے گی آپ کے پاس، بڑی خوبصورت ہے یہ۔ جس عورت نے منال کو تیار کیا وہ رضیہ بائی کو کہنے لگی،
तो मनाल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो खौफजदा हो गई थी। उसके दिमाग में फकत एक ही बात चल रही थी कि किस तरह वो इस कोठे से भाग पाएगी। पहली मर्तबा उसने किसी कोठे के इस भयानक रूप को देखा था। अक्सर उसने सिर्फ कोठे का नाम सुना था, मगर उसे यहाँ आकर अंदाजा हुआ कि यहाँ की दुनिया किस कदर बेबाक थी। हर तरफ लड़कियां वाहियात लिबास में फिरती नजर आती, कुछ गाने गाती हुई मर्दों को लुत्फानंदोज कर रही थी और कुछ लड़कियों को बेचा जा रहा था। उसके अलावा यहाँ अमीर लोग कंवारी और अपनी पसंद की लड़कियों के साथ रात भी गुजारा करते। ये कोठा फहाशी का अड्डा है। अल्लाह से डरें वरना अजाब आएगा। यहाँ गुनाहों से तौबा कर लें। मनाल रजिया बाई को आईना दिखाती हुई बोली। रजिया बाई, जो कि खुद को बहुत नेक समझती थी, उन्हें मनाल की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसका सर चकरा कर रह गया। वो शॉक्ड होकर रजिया बाई को देखने लगी। बकवास बंद करो, मुझे तुमसे ज्यादा पता है हर चीज का। मैं यहाँ कोई गुनाह वाला काम नहीं कर रही, लोगों की खिदमत कर रही हूँ। अगर हमारी वजह से किसी को खुशी मिलती है या कोई लड़कियों से अपना मतलब हासिल करके उसे पैसा देता है तो इसमें गुनाह वाली क्या बात है? लड़की की रोजी रोटी भी लगी है और मर्द भी खुश होकर जाते हैं। रजिया बाई ने गुस्से में उसे अपनी बात वजाहत करते हुए कहा और तस्बीह के दाने पर अल्लाह का जिक्र करने लगी। इस मुनाफकत पर मनाल का जी चाहा वो चीख चीख कर रोए। आजकल के लोगों को क्या हो गया था? हराम हलाल, जायज़ नाजायज़, गुनाह सवाब, किसी चीज़ की तमीज़ नहीं रही थी। और यह नायका डंके की चोट पर कितनी बड़ी बातें कह गई थी। वो हराम को हलाल का रूप दे रही थी। मनाल ने उस पल शिद्दत से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे इस फहाशी के अड्डे से निकाल कर ले जा, मुझे यहाँ से निजात दिला। उसने आंसू साफ किए और फिर लबों पर खामोशी सजा ली। रजिया बाई हर सूरत मनाल की तगड़ी कीमत वसूल करना चाहती थी, क्योंकि एक तो वो कम उम्र थी और कमारी भी थी। कई मर्दों की निगाहें मनाल पर उठती थीं और जब वो उसके साथ वक्त गुजारने की बात करते थे तो रजिया बाई उनसे काफ़ी कीमत का मुतालबा करती थी और फिर अक्सर लोग इतनी कीमत देने से इनकार कर देते थे। इसी तरह एक महीना गुजर गया। अब तक रजिया बाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। मनाल कमरे में डरी सहमी बैठी रहती और उसकी दिन रात यही दुआ होती थी कि उसे इस पिंजरे से रिहाई मिल जाए। उसके सर पर हर वक्त मेड्स, लड़कियां और दीगर औरतें रहती। वो भागने का सिर्फ सोच सकती थी। इस बिल्डिंग नुमा भूल भुलैयों में उसे अब तक रास्ते भी याद नहीं हुए थे कि उसे कहाँ से भागना है। आज उसने रजिया बाई को अपनी मोयम्मर बहन से बातें करते हुए सुना। वो मनाल के हवाले से डिस्कशन कर रही थी। मेरा तो मशवरा है, इसे किसी अमीर मर्द को बेच देते हैं, बोली लगवा देते हैं इसकी। इस तरह एक ही दिन में हम इसकी तगड़ी कीमत वसूल करेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ जितने लोगों की निगाहें इस पर पड़ेंगी उतनी कीमत कम होती जाएगी इसकी। रजिया बाई की बहन ने उन्हें मशवरा दिया। रजिया बाई बहुत खुश हो गई थी और उन्होंने उस मशवरे पर अमल करने का सोचा। मनाल के हाथ पैर कांपने लगे। वो डर गई और डर के मारे वहां से भागने लगी। उसने इरादा कर लिया था वो हर सूरत आज यहां से निकल कर रहेगी, मगर उन औरतों ने उसे दबोच लिया और रजिया बाई के हवाले कर दिया। तूने भागने की जुर्रत भी कैसे की? उन्होंने उसके बाल खींचते हुए कहा तो वो दर्द से सिसकी। प्लीज मुझे छोड़ दें, जाने दें, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे मत बेचे। वो उनसे इल्तिजाएं करने लगी, मगर रजिया बाई को उस पर रहम नहीं आया। वो उसकी आंखों में आंसू देख रही थी। अचानक उन्होंने उसके बाएं गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे मारते हुए कमरे में ले गई। अब तो मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो। बहुत जल्द अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी, जब तुम्हारा सौदा होगा। वो तलखी से बोली और कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी। बाकी लड़कियां तरहुम भरी निगाहों से मनाल को देख रही थी।
बेचारी ऐसे ही उन सब से लड़ रही है। भला इन औरतों से कौन लड़ सकता है? रज़िया बाई ने कई सालों से सैकड़ों लड़कियों को काबू में किया है, उन्हें बेचा है, उन्हें इस्तेमाल किया है। ये लड़की भी भेंट चढ़ जाएगी, और फिर इसके साथ क्या होगा, ये कहाँ जाएगी, कोई जान नहीं पाएगा। 2 लड़कियां आपस में सरगोशी करते बोली। वो सिर्फ रज़िया बाई की कनीजें थीं। रज़िया बाई ने फैसला कर लिया था वो मनाल को बेच देंगी, इसीलिए कोठे पर तैयारियां होने लगी। रज़िया बाई को पता चला आज शाम कोठे पर कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए वो कोठे को मज़ीद दिलकश बनाने की तैयारी करने लगी। हर तरफ फूल बिखेरे थे और लाइट्स जलाई गईं। कोठा खुशबुओं से महक रहा था। शाम के वक्त कोठे में महफिल सजी हुई थी। खास मेहमान भी कोठे में पहुंच चुके थे। रज़िया बाई कनीज़ों के जरिए मशरूबात और दीगर लवाजमात टेबल पर सजवा रही थी। उसके बाद मौसीकी का दौर चला और फिर वो वक्त आ गया जिसका रज़िया बाई को इंतज़ार था। जाओ, उस लड़की मनाल को लेकर आओ, उन्होंने अपनी दोनों कनीज़ों से कहा। वो दोनों उनके हुक्म की तामील करती चली गई और मनाल को खींचते हुए ले आईं। मनाल खामोश थी। वो चीख और पुकार नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था वो यहाँ से आज किसी भी तरह भाग कर रहेगी। अगर वो शोर मचाती तो रज़िया बाई मोहतात हो जाती, इसलिए वो खामोशी से उनकी बात मान रही थी ताकि उन्हें चकमा देकर भाग सके। मनाल वहाँ आ गई थी। रज़िया बाई ने उसे बेहिजाब करके मर्दों की भरी महफिल में खड़ा किया था। वो आंखें मीच गई थी। ये अब तक सबसे अनमोल और हसीन हीरा है, जिसकी बोली सबसे ऊंची हुई। पहली खिदमत ये उसी की करेगी, बल्कि अगर कोई मुस्तकिल तौर पर इसे खरीदना चाहे तो ये ऑफर भी मौजूद है। रज़िया बाई के कहते उसकी बोलियां लगनी शुरू हुईं। सब मर्द उसे गहरी निगाहों से देखने लगे। मनाल हर किसी के दिल को भा गई थी। हर कोई उसकी कीमत लगा रहा था और वो अपनी मौत की दुआ कर रही थी। या अल्लाह, या तो मौत अता कर या निजात अता कर। उसने दुआ की। उन मर्दों में वो भी बैठा था और मनाल को देखकर वाकई उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। 1 करोड़। तब से खामोश बैठे इब्तिसाम सिकंदर की आवाज़ पर सन्नाटा छा गया और मनाल मज़ीद शिद्दत से रो दी, क्योंकि उसे बेचा जा चुका था। 2 औरतें उसे पकड़कर तैयार करने चली गईं। मैं आज रात यहीं इस कोठे में इस लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसकी कीमत सुबह तुम्हें वसूल हो जाएगी। इब्तिसाम सिकंदर रूबदार लहजे में बोला। उसकी शख्सियत से साफ आया था कि वो कितना अमीर है। रज़िया बाई भी उसकी शख्सियत से बड़ा मुतासिर हुई थी। ठीक है इब्तिसाम सर, आपके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, रज़िया बाई मीठे लहजे में बोली, क्योंकि बरसों से आज तक कोठे में किसी लड़की की इतनी ऊंची बोली नहीं लगी थी। कभी कोई खरीदार 50 लाख से ऊपर नहीं जाता था, और ये लड़का तो 1 करोड़ रुपए दे रहा था। मनाल का रो रो कर बुरा हाल था। वो नहीं जानती थी उसका खरीदार कौन था। अब उसके साथ क्या होगा। वो रहम की भीख मांग रही थी, मगर रज़िया बाई ने पहले भी उस पर कभी तरस नहीं खाया था, तो अब क्या खाती। उसे दुल्हन की तरह तैयार किए इब्तिसाम सिकंदर के कमरे में भेजा गया। वो रोती हुई कमरे में बैठी थी। भागने की सारी कोशिशें नाकाम थीं। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलने और फिर लॉक होने की आवाज़ आई, पर जब उसने निगाह उठाकर देखा, इब्तिसाम सिकंदर को देखा तो पत्थर हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने इब्तिसाम सिकंदर है। वो चेहरे पर तलखी लिए उसके करीब आया और उसका चेहरा थोड़ी से थामे ऊंचा किया। तो वाकई तुम एक मादा परस्त लड़की हो। लालच की हिर्स में तुम इतनी अंधी हो गई कि कोठे तक पहुंच गई। देखना, आज मैं तुम्हारे साथ तवाइफों वाला ही सलूक करूंगा। किस्मत ने मुझे मौका दिया है कि मैं तुम जैसी लालची लड़कियों को अंजाम तक पहुंचा दूं। वो गुस्से से कहने लगा, मगर अचानक मनाल उसके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। प्लीज़ मेरी बात सुने, एक बार बस मुझ पर भरोसा करें। उसके बाद आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा।
وہ اس کے قدموں میں گر کر رونے لگی تو ابتسام سکندر دنگ رہ گیا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اسے اس کی آنکھوں میں آج بھی سچائی اور معصومیت نظر آئی۔ بولو، کیا کہنا ہے تمہیں؟ وہ اس سے دور ہوتے بولا اور سگریٹ سلکھا کر اس سے فاصلے پر بیٹھ گیا اور وہ روتے ہوئے اسے سب بتانے لگی۔ وہ کالج سے ڈری سہمی ہاتھوں میں کتابیں تھامے، کالج بیگ دائیں کندھے پر ڈالے تیز تیز قدموں سے جا رہی تھی۔ یہ علاقہ بہت سنسان ہوا کرتا تھا اور اس کے آس پاس آنے کے لیے کسی ٹرانسپورٹ کی بھی کوئی سہولت موجود نہیں تھی، اسی لیے وہ پیدل کالج تک آتی جاتی تھی۔ روزانہ اسے 20 منٹ کالج جاتے ہوئے لگتے تھے اور 20 منٹ واپس آتے ہوئے لگتے۔ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح اس نہ ختم ہونے والی سڑک پر تیزی سے چل رہی تھی۔ آج اسے گھر جانے کی بہت جلدی تھی کیونکہ اس کی چھوٹی بہن کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اسے اپنی بہن کو کلینک لے کر جانا تھا۔ آج اس کا پیپر تھا، اسی لیے وہ چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ چلتے چلتے اچانک ایک بائک اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ 2 لڑکے تھے جو اس کے کالج میں ہی پڑھتے تھے اور اکثر وہ اس پر فکرے کستے یا اسے چھیڑتے تھے۔ اوہو، بیچاری آج بھی اکیلی پیدل جا رہی ہو، آؤ ہم چھوڑ دیں، بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ۔ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولے تو منال رونے والی ہو گئی، مگر وہ اسے تنگ کرتے ہوئے اس کے گرد بائک پر بیٹھے چکر لگانے لگے۔ آؤ نا، بیٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہوگی تمہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے تو منال نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ڈر کے مارے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ لڑکے ہنستے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگے اور وہ ان سے خود کو بچانے کی خاطر بھاگنے لگی۔ یہ دونوں لڑکے بہت لوفر اور آوارہ قسم کے تھے۔ لڑکیوں کو تنگ کرنا، ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا اور انہیں ہراساں کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ خاص طور پر یہ دونوں ان لڑکیوں کو زیادہ تنگ کرتے جو ان سے خوفزدہ ہو جاتی تھیں۔ منال بھی ویسی لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جانے والی، دب جانے والی، آگے سے کچھ نہ کہنے والی۔ اس کے اس بھولے پن کا لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان لوگوں میں یہ 2 لڑکے بھی شامل تھے۔ منال بھاگتی بھاگتی اچانک رک گئی کیونکہ اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی کار رکی تھی۔ اگر گاڑی میں موجود شخص بریک نہ لگاتا تو وہ یقیناً بری طرح کار سے ٹکراتی اور اس تصادم پر اسے شدید چوٹیں آتی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا ابتسام سکندر چونکا کیونکہ وہ اس لڑکی کو پہچان چکا تھا۔ منال؟ وہ حیرت زدہ ہوا جب اس نے دیکھا منال رو رہی تھی اور 2 لڑکے بائک پر اس کے قریب آ کر اب بھی اس پر فکرے کس رہے تھے۔ جب منال کی نظر گاڑی کے اندر بیٹھے ابتسام سکندر پر آئی تو وہ جلدی سے ونڈو سائڈ کی طرف آئی۔ ابتسام، پلیز میری ہیلپ کریں، یہ لڑکے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ حواس باختگی سے بولی تو ابتسام سکندر کا خون کھول اٹھا۔ اسے ایسے لفنگے لڑکے سخت زہر لگتے تھے۔ وہ خود گاڑی سے نکل آیا اور ان 2 لڑکوں کی خوب دھلائی کی تو وہ اپنی جان بچا کر بائک پر لڑکھڑا کر بیٹھے اور بائک بھگا لے گئے۔ چھوڑیں گے نہیں اس کو، ہم دیکھ لیں گے، اب ایسا بدلہ لیں گے کہ کسی سے مدد مانگنے کے لائق نہیں رہے گی۔ وہ دونوں آپس میں غصے سے بڑبڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تو ابتسام کی نظر روتی اور خوفزدہ نظر آتی منال پر گئی۔ سب ٹھیک ہے منال؟ آئے گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ اسے دیکھ کر بولا۔ منال اس کی بہن کی دوست تھی، وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں، اسی لیے ابتسام اپنی بہن کی تمام سہیلیوں کو جانتا تھا، جن میں ایک منال بھی تھی۔ جب ابتسام نے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کی کہ وہ اسے گھر تک چھوڑ دے گا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ لڑکے دوبارہ سے نہ آ جائیں۔ منال اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور ابتسام کی نگاہ بار بار بے اختیار منال کی جانب اٹھ رہی تھی۔ وہ بہت بھولی بھالی اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اس بات کا اعتراف وہ تبھی کر گیا تھا جب اس نے پہلی مرتبہ منال سے بات کی تھی۔ اسے اپنی بہن صحیفہ کی ایک یہی دوست قابل اعتماد لگتی تھی۔ بس یہیں اتار دیں،
آپ کا بہت شکریہ۔ منال 2 گلیاں چھوڑ کر پہلے ہی اتر گئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اسے ابتسام کے ساتھ دیکھے۔ اگر ایسا ہوتا تو محلے والے باتیں بناتے، اور اگر یہ بات اس کی تائی تک پہنچ جاتی تو وہ تو اس کا جینا حرام کر دیتی۔ ابتسام دور سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ گاڑی بھگا کر لے گیا۔ وہ اپنے کام سے ہی جا رہا تھا جب اسے راستے میں منال مل گئی تھی۔ منال اور صحیفہ صرف 12ویں جماعت تک ایک ساتھ کالج میں پڑھتی تھیں۔ اس کے بعد صحیفہ یونیورسٹی چلی گئی اور منال کالج میں ہی رہی، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ یونیورسٹی کی فیس کا بوجھ اٹھا سکتی۔ البتہ کالج چھوڑنے کے بعد بھی صحیفہ کی منال سے اچھی دوستی رہی تھی۔ کئی بار صحیفہ منال کی مالی مدد بھی کر دیتی تھی، مگر اکثر منال اس سے پیسے نہیں لیتی تھی کیونکہ وہ بہت خوددار تھی۔ گھر آ چکا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو تائی نے اسے کام پر لگا دیا۔ گھر کے کام نپٹانے کے بعد وہ پہلی فرصت میں اپنی چھوٹی بہن مناہل کو کلینک لے گئی۔ اس نے فیس اور دوائی کے پیسے بھی تائی سے نہیں لیے تھے، بلکہ یہ اس کی جمع پونجی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ اگلے پیپر کی تیاری کرنے بیٹھ گئی اور دیر تک جا کر اس نے پڑھائی کی۔ اگلے دن کالج سے واپس آتے اسے ان 2 لڑکوں ماجد اور امجد کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ اللہ کی بہت شکر گزار تھی۔ اسی طرح 15 دن میں اس کے پیپرز ختم ہو گئے۔ اب کالج میں سردیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں اور وہ آرام سے بغیر ٹینشن کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی سے سکون ہی ختم ہونے والا تھا۔ آج اسے صحیفہ کی کال آئی تھی۔ وہ اسے باتیں کر رہی تھی۔ تائی اور ان کے بچے کسی فنکشن پر گئے ہوئے تھے۔ 2 دن بعد صحیفہ کی انگیجمنٹ تھی اور اس نے منال کو بھی گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ منال اس سے باتیں کرتے ہوئے گھر کے کام بھی نپٹا رہی تھی۔ وہ اپنی دوست کے لیے بہت خوش تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو حیرانی ہوئی کیونکہ باہر کوئی نہیں تھا۔ البتہ اسے اپنے دروازے کے قریب گلی میں اترتی سیڑھیوں پر ایک کاغذ پڑا ملا۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور اسے پڑھنے لگی۔ کیسی ہو جانے من منال، بہت یاد آ رہی ہے تمہاری، اتنے دن ہو گئے ملنے نہیں آئی تم۔ یہ خط پڑھتے ہی اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یہ خط کس نے اسے لکھا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ وہ خوف سے کپ کپاتی گھر کے اندر آئی اور دروازہ بند کر کے کنڈیاں لگا دی۔ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے یہ خط کئی ٹکڑوں میں پھاڑا اور انہیں کچن میں لے جا کر چولہے پر رکھ کر آگ لگا دی۔ اسے ڈر تھا اگر یہ تائی کے ہاتھ لگ گیا تو اس کی خیر نہیں۔ کون بھیج سکتا ہے یہ، یا کوئی شرارت کر رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ اپنے لب کاٹتی سوچنے لگی۔ اتنے میں اسے اپنی بہن مناہل کی آواز آئی تو وہ سب کچھ بھول بھال کر مناہل کے پاس چلی گئی۔ مناہل اسے 8 سال چھوٹی تھی۔ امی ابو کے چلے جانے کے بعد منال نے ہی اسے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ مناہل 5ویں جماعت میں تھی اور منال BSc کر رہی تھی۔ مناہل منال سے ہی ٹیوشن پڑھتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی بہن سے میتھس کے سوال سیکھ رہی تھی۔ صحیفہ کی انگیجمنٹ پر وہ بلیک کلر کی میکسی پہن کر گئی اور ان کپڑوں میں وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یوں تو صحیفہ کی انگیجمنٹ تھی مگر منال برائیڈ لگ رہی تھی۔ جب ابتسام کی نگاہ اس پر گئی تو وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ منال مسکرا کر چلتی ہوئی صحیفہ کے پاس آ رہی تھی، مگر اچانک اس کی ہیل میں اس کی میکسی پھنس گئی۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ زمین بوس ہونے لگی۔ مگر ابتسام جو کہ صحیفہ کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اس نے آگے بڑھ کر منال کو اپنے حصار میں لیا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ منال اس کے سینے سے جا لگی۔ ہر کسی کی نگاہ منال اور ابتسام کی طرف جا رہی تھی۔ منال شرمندگی سے ابتسام سے معذرت کرتی، دھڑکتے دل سے اس کے حصار سے نکلی تھی۔ ابتسام کے آس پاس جل ترنگ سے بجنے لگے۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر منال کو دیکھنے لگا۔
वो इससे इतनी हसीन लग रही थी कि वो उस पर से निगाहें नहीं हटा पा रहा था। सहीफा की माँ जायदा बेगम की निगाहों से ये सब छुपा नहीं रह सका। पहले भी उन्होंने महसूस किया था कि उनका बेटा सहीफा की इस दोस्त मनाल को बहुत अहमियत देता है, और आज तो उन्होंने अपनी आंखों से मजीद देख लिया था कि पहले उसने मनाल को गिरने से बचाया और अब भी वो उसकी जानिब से निगाहें नहीं हटा पा रहा था। मनाल की निगाह बेख्तियार इब्तिसाम की तरफ उठ रही थी। पहले उसने उसे उन 2 लड़कों से बचाया और आज गिरने से भी बचा लिया। न जाने क्यों इब्तिसाम के लिए उसके दिल में अलग जज्बात पैदा होने लगे, और वो दोनों ही छुप छुप कर एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों के दरमियान किस तरह की मोहब्बत की देवी ने कदम रखा, दोनों ही ना जान पाए। जब वो सहीफा के घर से लौटी तो उसके जज्बात ही बदल गए थे। जहन पर इब्तिसाम सिकंदर सवार था। बार बार उसका ख्याल इसके दिल की धड़कन को बेतरतीब कर रहा था। वो उसी के बारे में ही सोच रही थी, जिस वजह से बार बार मुस्कुराहट उसके लबों को छू रही थी। आप ही क्या सोचकर मुस्कुरा रही हैं आप? मनाहिल के पूछने पर वो चौंक कर होश की दुनिया में आई और झेंप गई। उसकी ये खुशी वक्ती साबित हुई, क्योंकि वो 2 लड़के अमजद और माजिद उससे हर हाल में बदला लेना चाहते थे। उन्होंने उसके घर के बाहर खत और फूल फेंकना शुरू कर दिए। अक्सर वो उसकी गली का चक्कर लगाते और उसे आवाज़ें देते हुए उसके घर का दरवाज़ा बजाते। एक दिन उन्होंने ताई से भी झूठ कहा कि मनाल ने उनसे दोस्ती कर रखी है और उनसे पैसे बटोरती है। कॉलेज का बहाना बनाकर वो उन दोनों से मिलती है। जब ताई ने यह सब सुना तो गुस्से से पागल होने लगी। वो दोनों लड़के अपना काम करके जा चुके थे। उनका मकसद मनाल को बदनाम करना था और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। ताई, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, मनाल खौफजदा सी कहने लगी, मगर ताई ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और उसे मारते हुए स्टोर रूम में ले गई और उसे वहां बंद कर दिया। उससे खाना पीना छीन लिया। मनाल रो रो कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगी, मगर कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। ताई, ताया और उसकी कजन्स सब उसे बुरा भला कह रही थी। 2 दिन बाद उसे ताई ने थोड़ा बहुत खाना दिया, क्योंकि वो उसे जान से मारना नहीं चाहती थी। अगर मार देती तो बहुत नुकसान होता। अभी उन्होंने मनाल से नौकरी करवानी थी ताकि वो इस घर का खर्चा चलाए। ये घर किराए का था। मनाल कस्में खा खा कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। फिर इत्तेफाक से सहीफा मनाल को अपनी शादी का कार्ड देने आ गई, तो फिर मनाल की सच्चाई सामने आ गई। आंटी, अमजद और माजिद बहुत झूठे और लोफर लड़के हैं। आपने उनकी बात का एतबार भी कैसे कर लिया? मनाल बहुत मासूम और नेक लड़की है, आपको उस पर शक नहीं करना चाहिए था। सहीफा तासुफ से बोली तो ताई को यकीन आ गया और उन्होंने सोच लिया वो मनाल को माफ कर देंगी और उसकी पढ़ाई जारी रखेंगी। उनका इरादा था वो उसे पढ़ाकर किसी जॉब पर लगवाएंगी और यूं वो उनकी बेटियों की शादी के लिए जहेज जमा करेगी। 6 महीने बाद सहीफा की शादी थी। उसने मनाल समेत उसके घर वालों को भी इनवाइट किया। उसके अलावा इब्तिसाम ने भी मनाल से व्हाट्सएप पर राब्ता किया था। उससे बात करके मनाल अपने तमाम गम भूलने लगी। उन दोनों को एक दूसरे से बात करना बहुत अच्छा लगने लगा। मनाल को जब भी उदासी महसूस होती वो इब्तिसाम से बात कर लेती। मनाल की ग्रेजुएशन हो गई थी और आजकल वो फ्री थी। आज से सहीफा की शादी के फंक्शन शुरू थे। मनाल ने मेहंदी के दिन पीले रंग की शलवार कमीज पहनी थी। इब्तिसाम को इसी का इंतजार था। जब उसकी निगाह मनाल पर उठी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दूसरी तरफ ताई की और उनकी बेटियों की हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। ताई को अब अंदाजा हुआ था कि मनाल की दोस्त के घर वाले इतने अमीर हैं। जब ताई की निगाह इब्तिसाम पर पड़ी तो उनकी आंखें फट पड़ी और वो दिल में सोचने लगी, अगर उनकी बेटी हमना की शादी इब्तिसाम से हो गई तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। उन्होंने अपने तरीके से पता लगाया कि कहीं इब्तिसाम की मंगनी या रिश्ता तो नहीं तय हुआ।
जब उन्हें पता चला कि उसकी अभी तक ना मंगनी हुई है और ना ही रिश्ता तय हुआ है तो वो बहुत खुश हो गईं और उन्होंने हमना को इब्तिसाम के पीछे लगा दिया। मगर इब्तिसाम तो सिर्फ मनाल का हो चुका था। उसकी निगाह उससे हटती तो वो किसी और को देखता। जायदा बेगम को मनाल पहले ही पसंद नहीं आई थी और अब उसके घर वालों को देखकर उन्हें मजीद बुरा लगा। जब उसने देखा सारे फंक्शन में मनाल की ताई और उनकी बेटी इब्तिसाम के आगे पीछे फिर रही हैं तो उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। मगर फिर शादी के फंक्शंस के बाद वो ये सब कुछ फरामोश कर गई। अब उन्हें अपने बेटे की शादी की टेंशन थी। वो सहीफा से बड़ा था मगर अपने काम में मसरूफ होने की वजह से वो शादी को टालता रहा था। और उसके बाद मनाल की ताई का इनके घर में आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। वो बहाने बहाने से या तो खुद आ जाती थी या हमना को भेज देती थी। आज भी उन्होंने हमना के हाथ एक डिश बनाकर जायदा बेगम के घर भेजी। जायदा बेगम को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था मगर वो इस सब को कुछ नहीं कहती थी क्योंकि सहीफा की मनाल से दोस्ती थी और ये लोग मनाल के घर वाले थे, इसीलिए वो लिहाज कर जाती थी। जब हमना वापस जा रही थी तो उसे गेट पर इब्तिसाम मिल गया। वो जान पूछकर उसे बातचीत बढ़ाने लगी और हंस हंस कर बातें करने लगी। इब्तिसाम उसे मनाल की कज़न समझकर बातें कर रहा था। लाउंज की खिड़की से जब जायदा बेगम की नज़र इब्तिसाम और हमना पर पड़ी तो उनके माथे पर बल पड़ गए। जब हमना के जाने के बाद इब्तिसाम घर के अंदर आया तो जायदा बेगम ने उससे हमना के बारे में बात की। मुझे मनाल के घर वाले बहुत लालची लगते हैं। जब देखो या तो हमना मुंह उठाकर घर आ जाती है या उसकी माँ। तुम्हारे साथ भी इतना फ्री हो रही हैं, पता नहीं क्या इरादे हैं इनके। अगली बार गार्ड से कहना पड़ेगा कि इनको घर के अंदर ही ना आने दे। जायदा बेगम की बात सुनकर इब्तिसाम अफसोस से उन्हें देखने लगा और मनाल की वजह से उसके घर वालों की हिमायत करने लगा। मगर जायदा बेगम को मनाल भी अच्छी नहीं लगती थी। हमना दिन रात इब्तिसाम की दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही थी। उसे लग रहा था इब्तिसाम जो उससे अब बात कर लेता है शायद वो उससे मोहब्बत करने लगा है, हालांकि ये उसकी खाम ख्याली थी। जब घर में इब्तिसाम के रिश्ते के हवाले से बात होने लगी तो उसने अपने घर वालों को अपनी पसंद से आगाह किया। मामा, मुझे मनाल पसंद है और मैं उसी को एज अ लाइफ पार्टनर अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। इब्तिसाम की बात सुनकर जहां सहीफा बहुत खुश हुई वहीं जायदा बेगम शॉक्ड होकर रह गई। वो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी मगर सहीफा और इब्तिसाम के फोर्स करने पर वो खामोश हो गई। इब्तिसाम ने मनाल को ये खुशखबरी दी तो वो बहुत खुश हुई। उसने ताई से बात करने का सोचा। ताई, इब्तिसाम अपने घर वालों को लाना चाह रहे हैं रिश्ते के हवाले से। जब मनाल ने बताया तो ताई बड़ा खुश हुई। उन्हें लगा वो हमना का रिश्ता लेने आ रहे हैं। मेरी हमना तो है ही ऐसी, क्या नसीब पाया है हमने कि इब्तिसाम खुद तेरा रिश्ता लेकर आ रहा है। ताई हमना को गले लगाने लगी तो मनाल शॉक्ड हो गई। ताई, वो मेरा रिश्ता लेने आ रहे हैं, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मनाल ने मजीद वजाहत की। ताई ने जब ये सुना तो उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। इस बेइज्जती और अपनी नाकामी पर हमना रोने लगी और ताई ने मनाल को एक बार फिर मारना शुरू कर दिया। वो तकलीफ से रोते हुए अपने कमरे में बंद हो गई। इब्तिसाम ने बताया कि वो इस वीकेंड पर उसके घर आएंगे। मनाल उसकी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। ताई ने उसे खूब मारा था। वो नहीं जानती थी कि ताई अब इस रिश्ते के लिए राजी होंगी या नहीं। वैसे भी वो उनकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करती थी। 2 दिन बाद ताई का गुस्सा कम हुआ तो उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दी कि चाहे जिसकी भी शादी इब्तिसाम से हो, हमारा मकसद सिर्फ पैसा वसूल करना है। हमना को भी उनकी बात में दम लगा। उन्होंने प्लान बनाया कि वो इब्तिसाम से तभी मनाल की शादी करेंगी
जब वो उनकी हर डिमांड पूरी करेगा। ताई ने मनाल को अपने कमरे में बुलाया। तुम्हारी शादी तभी इब्तिसाम से होगी जब वो हमारी डिमांड पूरी करेगा और तुम भी हमारा साथ दोगी। अगर तुमने हमारी किसी बात से इनकार किया तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी बहन का बहुत बुरा हाल करूंगी, याद रखना। ताई उसे धमकाते हुए बोली। मनाल तो हमेशा उनसे डर जाती थी, इसीलिए वो आज भी डर गई और जज्बात में सर हिला दिया। उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम उसकी ताई उसकी शादी इब्तिसाम से तो करने पर राजी हैं। उसी हफ्ते इब्तिसाम की फैमिली ताई के घर मनाल का रिश्ता लेकर आ गई। मनाल ने उन सबके सामने चाय और दीगर लवाजमात रखे। इब्तिसाम की निगाहें आज भी मनाल से नहीं हट रही थी। मनाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो ताई के बराबर में जाकर बैठ गई। फिर ताई ने अपनी शराइत रखना शुरू की। उनकी पहली शर्त ये थी कि इब्तिसाम ये किराए का मकान उन्हें खरीद कर देगा। उसके अलावा वो मनाल को 20 लाख रुपए हक महर देगा और इस घर का सारा खर्चा वही उठाया करेगा, क्योंकि उन्होंने भी मनाल और उसकी बहन का सारा खर्चा उनके माँ बाप के मरने के बाद उठाया था। अगर तुम्हें मंजूर है तो मनाल की तुमसे शादी हो जाएगी, वरना फिर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा, ताई ने संजीदगी से कहा। वो जानती थी अगर इब्तिसाम वाकई मनाल के लिए संजीदा है तो वो इन शराइत को मान लेगा। इब्तिसाम समेत उसकी फैमिली दंग रह गई थी। मनाल, ये कैसी शराइत हैं? हम इज्जत से तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं, तुम्हें खरीदने नहीं आए। इब्तिसाम की अम्मी को ये बातें अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उन्होंने मनाल से सवाल किया। ताई ने मनाल को आंखें दिखाईं तो उनका इशारा समझकर वो डर कर आंखें झुका गई। ताई का फैसला ही मेरा फैसला है इब्तिसाम। आप ये शराइत मान लें तो मेरी आपसे शादी हो जाएगी। और वैसे भी आप लोग तो बहुत अमीर हैं, ये सब आपके लिए मुश्किल नहीं। मनाल ने वही सब कहा जो ताई ने उसे कहने को कहा था। इब्तिसाम जब्त से बैठा रहा और फिर खड़ा हो गया। चले मामा, हमें ऐसी जगह रिश्ता नहीं करना जहां रिश्ते नहीं सौदे होते हैं, वो तल्खी से बोला और वहां से चला गया। उसका दिल बहुत टूटा था। उसे मनाल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इब्तिसाम कि ये लालची लोग हैं। तुम ही उस लड़की मनाल के लिए मरे जा रहे थे। दिखा दिया ना असली चेहरा उसने अपना। सिर्फ हमारी दौलत को देखकर वो तुमसे मोहब्बत का दावा कर रही थी। जायदा बेगम की बातें इब्तिसाम के दिल पर लग रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि मनाल उससे शादी के लिए शर्तें रखेगी। उससे साफ जाहिर था कि मनाल और उसके घर वालों के लिए पैसा ज्यादा अहम था। मुझे ऐसे लालची लोगों से सख्त नफरत है और अब तुम भी उन्हीं की लिस्ट में हो जिससे मुझे शदीद नफरत है। इब्तिसाम ने गुस्से में सोचा और मनाल को हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि वो उस जैसी लालची लड़की को हमेशा के लिए अपने दिल से और जिंदगी से निकाल सके। दूसरी तरफ मनाल फूट फूट कर रो रही थी। ताई, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी इन बातों की वजह से इब्तिसाम नाराज हो गए हैं। मैं उन्हें सब सच बता दूंगी और मैं उनसे बगैर किसी शर्त के शादी करूंगी। मनाल अटल लहजे में बोली तो ताई ने उससे उसका फोन छीन लिया और उसे उसके कमरे में बंद कर दिया। वो गुस्से में आ गई थी क्योंकि इब्तिसाम के घर वालों ने उनकी बहुत बेइज्जती की थी। खास तौर पर जायदा बेगम ने उन्हें लालची कहा था। उन्होंने मनाल का फोन तोड़ दिया ताकि वो कभी उन लोगों से राब्ता ना कर सके। ये अमीर लोग इंतहाई छोटे दिल के मालिक होते हैं, उन्होंने गुस्से से सोचा। इस दौरान हमना के लिए एक रिश्ता आ गया था, इसलिए उनका गुस्सा पहले से कम हुआ। ये रिश्ता बहुत अच्छा था, घराना काफी अच्छा था, इसीलिए उन्होंने उसे कबूल कर लिया। बहुत जल्द हमना की मंगनी हो गई और फिर उसके ससुराल वालों का घर भी आना जाना शुरू हो गया। वो बड़े दिल के लोग थे और अच्छे घराने के थे, इसलिए ताई किसी भी सूरत ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहती थी। वो शादी की तैयारियां शुरू करने का सोच रही थी,
जब अचानक ही घर के हालात बिगड़ने लगे। ताया को दुकान में काफी नुकसान हुआ था। अब दोबारा सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। ऊपर से हमना के ससुराल वाले जल्दी शादी का कह रहे थे। ताई परेशान थी कि किस तरह हमना की शादी की तैयारियां करें। उनके पास तो पैसे ही नहीं बचे थे। जब उन्होंने अपने सारे हालात हमना के ससुराल वालों को बताए तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और यूं हमना की शादी टूट गई। उसके बाद हमना को डिप्रेशन हो गया और वो अपने ही कमरे से नहीं निकलती थी। ताई का गुस्सा मजीद बढ़ गया था। ये दुनिया उसी की होती है जिसके पास पैसा हो, उन्होंने सोचा था। और फिर उन्हें एक दिन अपनी पुरानी दोस्त मिल गई और उन्हें देखकर ताई हैरान रह गई। उन्होंने अपनी उस पुरानी दोस्त को बिल्कुल नहीं पहचाना था, जो पहले बहुत गरीब होती थी। आज उसके पास गाड़ी थी और बहुत पैसा भी था। ये अचानक तुम्हारे दिन कैसे बदल गए फरहत? उन्होंने पूछा तो फरहत ने उनसे एक कोठे का जिक्र किया कि पिछले कई सालों से वो वहां जाती थी और अपनी बेटी को भी इसी काम में लगा दिया, जिस वजह से वो इतनी अमीर हो गई। बस मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है कि उसके साथ रात गुजारने के लिए मर्द लाखों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। उसी की वजह से मैं इतनी अमीर हो गई हूं, फरहत बड़े फख्र से बता रही थी। पैसों की लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि वो हराम हलाल की तमीज भूल गई थी। उन्होंने ताई को अपने घर बुलाया तो इतना बड़ा घर देखकर ताई के दिल में भी लालच पैदा हो गई। मेरी मानो तो तुम भी अपने देवर की बेटी को इसी काम में लगा दो। जब आखिरी बार मैंने उसे देखा था तो बड़ी प्यारी हुआ करती थी। अब भी अगर वैसी है तो उसे कोठे पर छोड़ाओ। वहां की नायिका मेरी सहेली बन चुकी है, अच्छी कीमत देगी तुम्हें उसकी। फरहत ताई को मशवरा देने लगी। ताई सोच में पड़ गई थी। उन्हें वाकई पैसों की जरूरत थी जिससे उनके शौहर मजदूरी और नौकरी छोड़कर कोई नया कारोबार डाल सकें और वो अपनी तीनों बेटियों का जहेज बना सकें। ठीक है, मैं मनाल को कल ही लेकर जाती हूं, ताई ने कहा। फरहत बेगम उनके साथ जाने पर राजी थी। जब वो घर आई तो पैसों के बारे में ही सोचने लगी। उन्होंने अपने शौहर से पैसे के हवाले से डिस्कशन की तो वो कहने लगे, अगर मुझे कहीं से 10-15 लाख मिल जाएं तो मैं अपने दोस्त के साथ कारोबार शुरू करूंगा जिसमें इतना मुनाफा होगा कि हम 1 साल में ही ये घर खरीद सकते हैं या कहीं और अच्छा सा मकान ले सकते हैं। ताई ने जब ताया की बात सुनी तो उन्हें मजीद लालच आने लगी और अगले दिन वो बहाने से मनाल के पास गई। मनाल, अच्छा सा तैयार हो जाओ और मेरे साथ मेरी एक सहेली के घर चलो, ताई ने उसे मीठे लहजे में कहा तो वो हैरान हो गई और फिर खामोशी से तैयार होने लगी। ताई उसे न जाने कहाँ लेकर जा रही थी। होश उसके तब उड़े जब उसने देखा ताई उसे कोठे पर ले आई हैं। फरहत बेगम भी साथ थी। ताई ने नायिका से मुलाकात की और झूठ बोलते हुए खुद को मनाल की सगी मां बताया। नायिका ने मनाल को देखा और जब फरहत ने भी उनसे बात की तो नायिका ने मनाल की 30 लाख रुपए कीमत लगाई और ये रकम ताई के हवाले कर दी। ताई खुशी खुशी घर आ गई और उन्होंने ये पैसे अपने शौहर को दे दिए। मनाल के हवाले से उन्होंने झूठ बोल दिया कि वो घर से अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। मनाल तो थी ही धोखेबाज। ये देखें, मेरी दोस्त फरहत ने उधार पैसे दिए हैं, आप इसे कारोबार शुरू करें। ताई बड़े अच्छे तरीके से झूठ बोलते हुए कहने लगी। ताया को पहले भी मनाल इतनी पसंद नहीं थी, वो उसे खुद पर बोझ समझते थे। इसीलिए वो उसका ख्याल जहन से झटक कर नए कारोबार के बारे में सोचने लगे। रजिया बाई ने मनाल के 30 लाख रुपए अदा किए थे। उन्होंने उसे 30 लाख में खरीदा था, मगर वो जानती थी कि मनाल की उससे दुगनी कीमत वसूल कर सकेंगी। मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि मनाल को कोई 1 करोड़ रुपए के एवज खरीद लेगा। वो बड़ा खुश थी और खुशी खुशी वो इब्तिसाम सिकंदर के झांसे में आ गई थी। इब्तिसाम पहला शख्स था जिसने ये डिमांड की थी कि वो आज रात कोठे में ही गुजारेगा।
सिगरेट का टुकड़ा उसने एशट्रे में मसल दिया। मनाल माजी की सारी बातें बताकर खामोश हो चुकी थी। इब्तिसाम, मुझे ताई ने धमकी दी थी, इसीलिए मैं उस दिन डर गई थी। उसके बाद जब मैंने आपको सच्चाई बताना चाही तो उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरा फ़ोन तोड़ दिया। मैं किस तरह आपको सच बताती। वो अपना सर थाम कर रोने लगी। इब्तिसाम का खून खौल उठा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि मनाल की ताई इस कदर शफाक होंगी। मनाल, तुम फिक्र मत करो। जिस जिस इंसान ने तुम्हें तकलीफ दी है उसको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा, जिनमें वो 2 लड़के भी शामिल हैं। तुम्हारे ताया, ताई, ये नायका और भी बहुत से लोग। इब्तिसाम ने गंभीर लहजे में कहा। मनाल हैरत से उसे देखने लगी। इब्तिसाम ने किसी को कॉल मिलाई और थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने पूरे कोठे को घेर लिया। मनाल, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मगर मेरे इसके अलावा खुफिया पहचान ये है कि मैं डीएसपी इब्तिसाम सिकंदर हूं। बहुत अरसे से हम लोग इस कोठे को अपनी हिरासत में लेने की प्लानिंग कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही अदालत ने कोठे के लोगों के अरेस्ट वारंट निकाले हैं, और अब तुम देखना, हर गलत काम करने वाला जेल की सलाखों के पीछे होगा और उस कोठे की इमारत का भी इबरतनाक अंजाम होगा। इब्तिसाम सिकंदर की बात सुनकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोने लगी। इब्तिसाम ने उसे अपने हिसार में लिया। पुलिस के लोग कोठे में दाखिल हुए और सब लोगों को हथकड़ियां डालकर अपने साथ ले जाने लगे। रज़िया बाई चीखते हुए अपना बचाव करने लगी, मगर उनकी दौलत भी उनके काम नहीं आई। उसके बाद इब्तिसाम ने उस कोठे को खुद ताला लगाया और मनाल को अपने साथ ले गया। उसने मनाल को सहीफा के पास छोड़ा और मनाल के कहने पर उसकी बहन मनाहिल को भी उसकी ताई के घर से ले आया। मनाल के साथ जो आपके घर में जुल्म हुआ, आपने उसे बेच डाला, उसकी सजा में आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इब्तिसाम सिकंदर की बात सुनकर ताई के होश उड़ गए। पुलिस वालों ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और जेल पहुंचा दिया। उस कोठे पर जो भी गैर कानूनी और गैर इस्लामी सरगर्मियां थीं, वो ख़त्म हो गई थी। अदालत ने उस कोठे को अपनी तहवील में ले लिया था। जो भी औरतें गलत कामों में मुलव्विस थीं, उनको सख्त से सख्त सज़ा सुनाई गई। ताई और ताया को 3 साल कैद की सज़ा हुई। इब्तिसाम ने मनाल से पूरी इज्जत से निकाह किया। सच सामने आने के बाद जाहिदा बेगम ने मनाल को दिल से कबूल कर लिया था। शुक्र है इब्तिसाम, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और आपने मुझे उस जालिम, बेरहम और सफाक दुनिया से आज़ाद करवा दिया। वो इब्तिसाम की बाहों में पनाह ढूंढते बोली। इब्तिसाम की मोहब्बत सच्ची थी, इसीलिए वो मनाल को पाने में कामयाब हो गया था। ये तो मेरी मोहब्बत का इम्तिहान था जिसमें मैं कामयाब हो गया। इब्तिसाम ने मुस्कुराकर कहा। ना सिर्फ वो मनाल की जिम्मेदारी अच्छे से उठा रहा था, बल्कि उसने मनाल की बहन मनाहिल का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था। मनाल बहुत खुश थी कि उसे उसके सब्र का अच्छा सिला मिला था। रज़िया बाई चीख चीख कर पागल हो चुकी थी। उनके गुनाह बलाएं बनकर उनके सामने आते थे और वो उसी जेल की तन्हाई से पागल होकर अपना सर दीवार में मारती थी। बेशक गुनाह का अंजाम दर्दनाक ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।